Hello everyone, what's up? This is Dev Shah and I welcome back you guys to my channel with another session. आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द करियर अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल टू यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वंस यू क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू एंटर द इंडस्ट्री. इसी के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी इसी वक्त से ध्यान रखनी पड़ेगी, अभी इसी वक्त से आपको करनी पड़ेगी ताकि जब आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उतरो तब आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस भर भर के हो. सम थिंग्स यू नीड टू take care of while selecting your articleship, some things you need to take care of while entering into that particular career opportunity, so that once you enter the career opportunity, once you grab the opportunity, it proves to be the best decision of your life. ठीक है, so what are those opportunities, how to achieve those opportunities, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. एंड तक आपको बने रहना है. एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज अ लॉट ऑफ such content is going to be posted in the very near future, and do leave your comments if you have any queries. तो चलिए वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं. सो जब आप सीए एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे, बेसिकली वंस यू क्लियर योर सीए एग्जाम्स, all the career opportunities will be of 4 types. You can either start your own CA firm, जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं. You can either work as a CA through a job, मतलब maybe as a job in audit, maybe as a job in tax, maybe as a job in finance, in accounts, in financial reporting, a lot of jobs, right? इसी के अलावा you can start either your own business or your family already has an existing business which you are going to continue. The generational business, the generational blood, if you want to continue by applying all your skills as a CA. इसी के अलावा एक चौथा ऑप्शन आता है टीचिंग. यू वांट टू गाइड मोर एंड मोर सीए एस्पिरेंट्स एंड मेक देम क्लियर द सीए एग्जाम्स एंड प्रिपेयर देम फॉर द इंडस्ट्री इन अ वेरी वेरी अमेजिंग मैनर. ओके, तो चलिए अब एक चीज बिफोर आई स्टार्ट the very first point, let me tell you that these are all my observations. okay, ये सारे के सारे मेरे observations है. of course किसी और के दूसरे observations हो सकते हैं, but मैंने जितना इंडस्ट्री को देखा है उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो सारी मैं आज आपको बताने वाला हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ वेरी फर्स्ट थिंग, आर्टिकलशिप इंपॉर्टेंस. यू नो द वेरी फर्स्ट पिलर विच यू शुड बी कवरिंग, whether you want to go to a job, practice, teaching or a business, the first pillar which you should be focusing on is your articleship. Now let me tell you, if you want to start your own CA firm, you have to excel in all the departments. Select a firm which has a transfer system, like for a few months you work in this department, for a few months you work in this department, for a few months you work in this department, or which has a freelancing culture. like अगर GST की ड्यू डेट आई तो GST में आ जाओ, इनकम टैक्स की ड्यू डेट आई तो इनकम टैक्स में आ जाओ, सितंबर में टैक्स ऑडिट्स आए तो ऑडिट में चले जाओ या टैक्स में चले जाओ, वॉट एवर इट मे बी. मार्च में स्टार्ट ऑडिट्स क्लोज होते हैं, अप्रैल में स्टार्ट ऑडिट्स क्लोज होते हैं तो आप उधर चले जाओ, लिमिटेड रिव्यू आए तो ऑडिट में चले जाओ. बहुत सारी चीज़ें है ना, विच एज अ फ्रीलांसिंग कल्चर. बिकॉज वॉट विल हैपन वंस यू एंटर इन द इंडस्ट्री, you will not get your first client on the basis of the work which you know. Client will come and say, sir, I have problem in this particular return, sir, I have problem in this particular audit, will you be able to solve it? बस यही सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्या आप मेरी ये प्रॉब्लम, क्या आप मेरा ये वाला काम कर सकते हो? तो भाई इफ़ यू से दैट नहीं, मेरा तो इसी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है, मेरा इस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस नहीं है, क्लाइंट विल गो टू योर कॉम्पिटिटर. डू यू वांट टू लूज क्लाइंट्स लाइक दैट? नो, राइट? यू वांट टू गेट प्रिपेयर्ड for the industry in a 360-degree perspective, and that is why focusing on all the departments in articleship is very necessary. ठीक है, so for a CA firm practice, if you want to open your own practice and you don't want to lose your clients, excelling in all departments is very necessary. Number 2, अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो of course articleship में you have to excel in all the departments, there is no other option. and इसी के साथ साथ आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उस पर्टिकुलर फील्ड में कीजिए जिस फील्ड का बिजनेस आप आगे चल के संभालने वाले हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल योर फैमिली हैज़ एन, मतलब इट्स अ वेरी रेयर एग्जाम्पल विच आई एम टेकिंग, बट स्टिल लेट्स से फॉर एग्जाम्पल योर फैमिली हैज़ अ ई-कॉमर्स बिजनेस, गो एंड टेक सम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन फ्लिपकार्ट because that will train you for e-commerce, for handling e-commerce businesses in the very near future. इसी के अलावा in every business we have tax returns, we have audits, we have GST returns, we have GST audits, so articleship will help you over there. okay, so you will be a all rounder. समझ रहे हो? इसी के अलावा इफ यू वांट टू गो इन अ जॉब, ऑफ कोर्स जॉब विल बी इन वन स्पेसिफिक प्रोफाइल, इन वन स्पेसिफिक डोमेन. इट विल आइदर बी इन ऑडिट, इट विल आइदर बी इन टैक्स, या फिर वो GST में हो सकता है या फाइनेंस में हो सकता है. सो आपको क्या
फील्ड में क्या डोमेन में जॉब चाहिए, आप आर्टिकलशिप में बस उस एक डिपार्टमेंट में भी एक्सेल कर लोगे तो चलेगा। और अगर आपको नहीं पता तो सारे डिपार्टमेंट्स ट्राई करके देखो, बट किसी एक डिपार्टमेंट में आप एक्सेल कर लेना, ताकि आप फ्यूचर में अगर उसी चीज़ के लिए जॉब करने के लिए जाओ तो आपको दिक्कत ना आए। द सेम गोज फॉर टीचिंग। अब टीचिंग कैसा होता है, लेट मी टेल यू। दो चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टीच ऑडिट सब्जेक्ट, आई वॉन्ट टू टीच ऑडिट बट आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन ऑडिट डिपार्टमेंट, तो कैसे पढ़ाऊंगा मैं? I want to teach tax, but I do not have any taxation experience in the industry or maybe through articleship. मैं कैसे टैक्स अच्छे से पढ़ा पाऊंगा? समझ रहे हो? इस तरीके से। इसी के अलावा लेट मी टेल यू व्हाट मेनी पीपल डू आफ्टर क्वालिफाइंग एज सीए, पार्ट टाइम वो उसी चीज़ का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ले लेते हैं फॉर 2-3 ईयर्स, जो सब्जेक्ट उनको पढ़ाना है, एंड देन दे गेट इनटू फुल टाइम टीचिंग। समझ रहे हो? सो ये चीज़ एक बहुत अच्छी बात है ना? सो एटलीस्ट गेट एक्सपीरियंस इन दैट डिपार्टमेंट विच यू वांट टू, द सब्जेक्ट विच यू वांट टू टीच। नेक्स्ट, स्किल्स एंड डिटर्मिनेंट्स। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको आपका करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी तरह से ग्रैब करना है तो। नंबर 1, फॉर प्रैक्टिस एंड बिजनेस यू शुड नो मल्टीटास्किंग, क्योंकि बिजनेस अगर खुद का होगा, सेल्स भी आपको यू आर द गाइड, यू आर द मेन हेड। सेल्स भी आपको ओवरसी करना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी ओवरसी करना पड़ेगा, अकाउंट्स भी ओवरसी करना पड़ेगा, सब काम बराबर से कर रहे हैं या नहीं। So whether everybody is doing their job properly or not, for that you need to know na what is the correct method for each and everything in your own business. So इसके लिए multitasking is a very important point. दूसरी चीज़, multiple software skills. Now the entire market is digitalized. Everything is being held on software and AI is also coming. Okay, so you should be very good in AI. You should be very good in multiple software skills and क्लाइंट बेस एंड कैपिटल। आपको आपके पास पैसा होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने का, प्रैक्टिस शुरू करने का, एंड क्लाइंट बेस आपके पास होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, इफ़ यू हैव योर ओन फैमिली बिजनेस, अगर आपका खुद का फैमिली बिजनेस है तो ये थर्ड पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट बेस एंड कैपिटल आपको इनहेरिटेंस में एक तरीके से मिल जाएगा फ्यूचर में, है ना? तो आपके पापा ने बना दिया होगा, आपको बस उसे आगे बढ़ाना है। बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, देन दिस बिकम्स अ वेरी गुड चैलेंज। सो यहाँ पे आपको वर्क करना है। What about job? Now we all know ये point, I know this is a very common point, but still मैं बताता हूँ, contacts and references के बिना आजकल जॉब नहीं मिलती। We all know the level of unemployment in India, है ना? अभी रिसेंटली ICI का कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, एंड वहाँ पर भी मैंने यही सुना that a lot of people were not able to secure jobs through campus placement. So contacts होंगे, references होंगे, तो this will be over and above your skills, help you as a turning point in getting your dream job or your desired job. Okay, just a minute, my mic zara. Next, make a strong CV. Now how do you make a strong CV? Should we attach all the certificates? The answer is no. Recently I saw a post on LinkedIn, I don't know whether you all know or not, but there was a girl, she had 50 plus certificates, she had 50 plus skills, but still she was not hired. Why? Because she did not possess any relevant skills. Like for example, a company uses Tally to audit its clients, and I want a job in that company. I know SAP, I know Excel, but I don't know Tally. मेरे पास स्किल्स तो बहुत सारे हैं, बट वो स्किल नहीं है जो उस कंपनी को चाहिए। मेरे को कोई हायर नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो स्किल क्योंकि जो स्किल चाहिए वो तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं किस काम का हूँ? समझ रहे हो? सो देयर इज़ अ वेरी गुड वे टू डेवलप द रेलेवेंट स्किल्स। उस कंपनी के प्रेजेंट आर्टिकल्स, उस कंपनी के प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ के पास जाओ, ask the company's present articles and employees what softwares are they using and work on them. If you are updated with the industry trend, if you are updated with where you want to go, then you will always be ready. Okay, next thing over here, marks will matter. Focus on scoring even in the smallest exams. Okay, let me tell you, one of the key points of your CV are your marks, right? रैंकर्स को हम ऐसा क्यों कहते हैं कि रैंकर्स को बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं? वाई डू AIRs गेट वेरी गुड पैकेजेस? ऑफकोर्स बिकॉज मार्क्स डू मैटर। आपके पहली नज़र जो है, आप CV में पहली चीज़ अपने मार्क्स के बारे में ही लिखते हो। सो मार्क्स तो आपको भर भर के स्कोर करने ही है ना? यू हैव टू बी गुड इन एकेडमिक्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जॉब। नेक्स्ट थिंग, टीचिंग। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, for teaching you need communication and simplification. While all the other options, job, business, practice, they all are focused on solving complex scenarios, teaching is making things more and more simple. आप किस तरह से कंसेप्ट को बच्चों को उस तरह से समझा सकते हो कि एक बार में वो बच्चों के ब्रेन में घुस जाना चाहिए। समझ रहे हो? दिस इज द आर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट थिंग, कम्युनिकेशन। अब देखो, शांति से मैं आपके साथ बातें कर पा रहा हूँ,
fluently I'm able to communicate with you all, whether it may be in Hindi, whether it may be in English. I'm keeping it partially in Hindi and English so that all the people understand, है ना. पार्शली हिंदी इंग्लिश में रख रहा हूँ, तो कम्युनिकेट करना अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, वरना कैमरे के सामने सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, कोई फायदा नहीं है, आगे नहीं आ पाओगे. बी कॉन्फिडेंट. नेक्स्ट थिंग, यू शुड हैव अ स्टूडेंट बेस विद रिजल्ट्स. Like for example, if you speak about this channel, November 23, May 24, September 24, Jan 25, and very soon upcoming May 25, we have aspirants who have watched our videos and scored very good in their exams. Next, brand collaborations. इसका एग्जाम्पल मैं आपको अपना दे देता हूँ. लेट मी टेल यू कि आप में से जितनों को भी नहीं पता, फॉर ऑल दोज हु आर एमिंग September 25, Jan 26 attempt and onwards, I have launched 2 courses on Chartered Studies Academy for CA Intermediate Financial Management, the regular batch and exam oriented batch. Exam oriented batch is worth 2,000 rupees and regular batch is worth 3,000 rupees. Okay, I'll attach the Chartered Studies Academy ka video in which I have spoken more about it and in which all the batch details are there. Alright, okay. So this was all about brand collaborations. Now, सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ है, पैसा कितना मिलेगा. बिकॉज ये सारी चीज़ें तो what is required है, but इसके अलावा these all things are the outcome, sorry, these all things are the impact which is required, these all things are the input which is required. What about the outcome, कितना मिलेगा? Let me tell you, as simple as that, job you will get on a fixed basis and धीरे धीरे इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. Let me tell you, for a practice on a business, इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट बेस. शुरुआत में एक क्लाइंट भी नहीं आएगा तो 0 रुपीज़ की इनकम भी हो सकती है, एंड ड्यू डेट्स के वक्त अगर भर भर के क्लाइंट होंगे तो भर भर के पैसा भी कमाओगे. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक थिंग. इसी के अलावा लेट मी टेल यू, अगर आपका फैमिली बिजनेस है, इफ यू हैव अ फैमिली बिजनेस, इट ऑल्सो मैटर्स दैट हाउ वेल डू यू हैंडल इट एंड इन विच फील्ड योर बिजनेस इज. लाइक फॉर एग्जाम्पल, योर फैमिली एज एन FMCG बिजनेस. FMCG बिजनेस में तो बहुत पैसा है यार, तो आपके पास जैसे ही बिजनेस आएगा आप तुरंत कमाना चालू कर लोगे. देर इज़ नथिंग मच टू वरी अबाउट इट, है ना. बट कुछ बिजनेसेस है जहाँ पे मेहनत लगती है. जहाँ तक मेरा आइडिया है, इंश्योरेंस बेचना, है ना. अगर आपकी एक इंश्योरेंस कंपनी है छोटी सी, जो इंश्योरेंस, या फिर आप इंश्योरेंस एजेंट्स हो, तो ऑफकोर्स मेहनत लगती है उसमें. इतनी आसानी से वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट्स बैग नहीं करते हो. इसी के अलावा फॉर टीचिंग, लेट मी टेल यू, फर्स्ट 2 to 3 years भूल जाओ रिटर्न के बारे में. पहले 2 से 3 साल तक इसमें रिटर्न के बारे में भूल ही जाना है. दिल से पढ़ाना सीखो पहले, उसके बाद पैसा आएगा. बट जब आएगा तब अच्छा खासा आ जाएगा. ठीक है. एटलीस्ट उतना तो आ ही जाएगा कि आप आराम से अपने घर के एक्सपेंसेस वगैरह सब मीट कर लोगे. सो नॉट टू वरी अबाउट इट. लेट मी टेल यू कि आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करो, पैशन आप में होना चाहिए. You want to do a job, you should be passionate about it. Or you want to start your own firm, you should be passionate about learning and about it. You want to teach students, you should be passionate about teaching. You should be willing to score good results of your students. Passion के बिना कुछ भी नहीं होगा, है ना. चलो, so this was all about today's session. If you have a doubt, once again I'll tell you, do let me know in the comment section. And if you like the content, like, share and subscribe. Alright, I'll see you guys in the next video with a new topic very soon. Till then, bye bye, take care and keep studying. जाओ, अब अपना काम कर सकते हो तो. Bye.